Hello everyone. Hi, welcome to a brand new session by your very own Varsha ma'am. How are you guys? I hope everybody is good, fit, fine, healthy, happy. Yes. Okay. So first of all, this is a premiered session. So I'm not live. I'm very sorry for that. But next session, as I promised, will be the last session of Trigo, and we are going to have a mentee of the full topic, right? So definitely next session I will be live, I will be there in front of you, but till then I miss you and I want you that if you're missing me, please attend this session because I can reach out to you through this session. Okay, so today what we are going to cover, this is the second last session. We are going to study bacha log sum to product and product to some type of questions. Soon you will come to know what are this, but before I go ahead, let's let's have a recap of what we have done in the past. तो come on बच्चों लोग, as I always ask you, आज फिर मैं पूछती हूँ, याद करिए बच्चों, पिछले सेशन में 2 दिन पहले वर्षा मैम ने आपको क्या कराया था सेशन में? हमने हाफ एंगल फॉर्मूले देखे थे, जिसको हम कहते हैं यानी कि डबल एंगल फॉर्मूले कहते हैं यार, है ना, बिकॉज 4x से 2x होता है, 2x से x होता है, तो उसी को हाफ एंगल भी कह लेते हैं. डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले. चलो जल्दी से बताओ मेरे को कि डबल एंगल फॉर्मूला में cos 2x के कितने फॉर्मूलेज बताए थे मैम ने? 1 2 3 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, 1 2 3 4 कितने फॉर्मूले थे? दैट्स राइट, 4. देयर वर 4 फॉर्मूलेज ऑफ cos. sin 2x के कितने फॉर्मूले थे मैम? 2 फॉर्मूले थे. एंड tan 2x के केवल एक फॉर्मूले, देयर वाज ओनली वन फॉर्मूले फॉर tan 2x. अच्छा, cos 2x, all the 4 formulas had their own importance. 3 formulas were related to cos and sin. The last one was exclusively based on tan only, है ना. sin 2x had one formula of sin and cos. The second one was exclusively based on tan. So depending upon the question, we select the formula. I did every question by asking you which formula makes sense the most. I hope you might have remembered the formula थोड़ा बहुत अभी तक, है ना. But do not forget, how did we derive all these formulae? By using the two hero formulas, cos of x plus y, sin of x plus y. So remember those two formulas very well. Similarly, triple angle formulas, guys, sin 3x, cos 3x and tan 3x were the 3 triple angle formulas that we were doing, that we studied, and we did questions on them, and then we had a wonderful mentee session in the end. So I hope you have practiced all the exercise which is related to it, and we're gonna start with sum to product and product to sum conversion. The first half of the lecture is sum to product. ठीक है? I will be showing you 4 formulas in front of you, but before I go and show you the 4 formulas, I want to ask whether have you done the homework question? Were you able to solve? Were you able to find the value of sin 15 degree using the half angle formula? I hope, I am sure you might have been able to do it, है ना. सबको याद है ये वाला फॉर्मूला यार, 1 plus cos x and 1 minus cos x. I told you this formula is during the mentee session. 1 plus cos x was 2 cos square x by 2. 1 minus cos x was 2 sin square x by 2. बस यही फंडा अप्लाई कर लो, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो. So what will be sin of x by 2, my dear child? It will be 1 minus cos x upon 2 under root, है ना. So बस sin 15 degree is going to be 1 minus cos 30 degree by 2 cos 30, we know. बस simplify, get the answer, you're done. All right, so that was the homework, and homework हो गया. ठीक है बच्चों, तो फटाफट से आ जाओ हमारे NCERT 11-12 के टेलीग्राम ग्रुप पे. टेलीग्राम को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और फिर ये लिंक पर आ जाइए, vdnt.in/tgncert. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है. ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप क्विकली, एंड इफ यू बीन लाइकिंग, तो यार मतलब लाइक मार दो बिफोर आई प्रोसीड. आप तो मुझे पहले से ही जानते हो, योर वेरी ओन वर्षा मैम. सो इफ यू आर
liking what we are doing. Like, share and subscribe before we start with the session. And bumper happy day, happy Dussehra to all of you. We have a bumper offer. Like I always say, Vedantu is the best online platform for all your NEET and JEE preparation. If your target is 2022 ka NEET and JEE, so Vedantu will help you, Vedantu will support you. And बच्चों एक तरीके से नहीं, मल्टीपल वेज से हम आपको सपोर्ट करेंगे जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो आपके एम तक पहुंचने के लिए. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. लाइव डाउट सॉल्विंग ऐप के थ्रू, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, क्लासरूम में मल्टीपल टीचर्स डाउट सॉल्विंग, बेस्ट टीचर्स, इन डेप्थ सब्जेक्ट कवरेज, और क्या चाहिए हमें बच्चों. एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड एंड द बम्पर सेल इज 50% डिस्काउंट. डिडंट आई टेल यू इन द लास्ट क्लास कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि मेरे बच्चों का फायदा हो जाएगा अगर हम 50% का डिस्काउंट दे देंगे तो. सो स्पेशल ऑफर यार, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप एक बार तो ट्राई करके जरूर देखियो. जनरली इट्स 4000 बट आपको सिर्फ 1349 रुपीज में मिलने वाला है बाय 50% डिस्काउंट. सिर्फ 2699 आपको मिलता था जब आप मेरा कोड यूज करते थे VTI Pro. बट आप अगर वो नहीं कोड यूज कर रहे हो, है ना, अब आपको 50% मिलेगा, 20% नहीं, विच इज जस्ट 1349. 3 मंथ्स का इतना हो जाएगा 3500 पकड़ लीजिए, 3500. एंड 6 महीने का कोर्स लगभग 5,500 में, 5750. So these are the new rates, special offer. Please go to the site. The link is provided in the description box. है ना, ये साइट का नाम है, लिंक ऑलरेडी दे रखा है. और आपको ये कूपन कोड यूज करना है VTI Pro, जिससे आपको इस बारी मेरी वजह से 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है स्टूडेंट्स. राइट. Okay, so I am back over here. Can you see me? Can you hear me? Okay, cool. So as I said, 4 formulas are there right in front of your screen. We need to remember these 4 formulas. First task, we need to apply them in the questions. Second task. Third task, we'll add it in our formula book and keep revising it every day, often I mean, regularly. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है cos x plus cos y is 2 times cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. अब पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करना. लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व द पैटर्न. आई एम रीडिंग इट आउट. cos x minus cos y is minus 2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. sin x plus sin y is 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2. sin x minus sin y is 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2. अरे बॉस, ये तो याद करना बड़ा ही मुश्किल है. देख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं करते बच्चों, उसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं हम. कैसे मैम? देखिए, सबसे पहले आप सब जगह देख रहे हैं x प्लस वाई बाई 2 एंड x माइनस वाई बाई 2 हर किसी के ब्रैकेट में. ये तो भाई सॉर्टेड है. आपको x प्लस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2 लिखना है. एंड नंबर 2 भी सभी जगह पे है. तो ये दोनों चीजें सॉर्टेड है बहुत अच्छे से. अब मैंने आपको हीरो फॉर्मूला इसीलिए दे रखा था क्योंकि मैं उसकी मदद से आपको ये याद करने की कोशिश कराऊंगी. Just try to recall these 2 formulas. Sin of x plus y was sin x cos y plus cos x sin y, and cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. Now I am going to give you certain tricks. अब बाद में मत बोलना कि मैम ट्रिक बताओ फॉर्मूला याद रखने का. ट्रिक सुन लीजिए. 2 चीजें ध्यान में रखियो. पहली चीज, अच्छा, आपने अगर प्लस साइन देखा, प्लस साइन मीन्स फर्स्ट टर्म, प्लस साइन मीन्स फर्स्ट टर्म एंड माइनस साइन मीन्स सेकेंड टर्म. ये क्या फर्स्ट टर्म क्या सेकेंड टर्म, सून आई विल टेल यू, डू नॉट वरी. बट प्लस साइन मीन्स फर्स्ट टर्म, माइनस साइन मीन्स सेकेंड टर्म. इतना चीज आपने ध्यान में रखना है. ओके, now let me try to reconnect the dots. Let me try to connect the dots between the hero formulas and the formula that you have written. अच्छा, सबसे पहले बच्चों आपने देखा cos cos, तो आप किसका फॉर्मूला रेफर करोगे हीरो में? cos का फॉर्मूला रेफर करना. 2 टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म
and second term. Can you see the first term and second term everywhere? हम cos की बात कर रहे हैं तो हमने cos के फॉर्मूला में रेफर किया फर्स्ट एंड सेकंड. अच्छा बीच में क्या है? प्लस है तो मैम ने बताया कि फर्स्ट वाले टर्म को रेफर करना है which is cos and cos. So that's why I will write cos and cos. Okay, let's move ahead. Again it's cos. So I will go to cos formulae. It's minus sign over here, so I will refer to the second term which is sin. तो इसीलिए यहाँ पे आ गया sin and sin. Always whenever there are two signs together there is some लोचा, है ना. ये माइनस साइन आ जाएगा, आप ऐसे इसको याद रखना कि दो साइन है साथ में तो ये कुछ तो लोचा होगा, देयर विल बी सम प्रॉब्लम. नेक्स्ट जो सेट ऑफ फॉर्मूलेज है ना उसमें भी ऐसा कुछ आने वाला है, सो कीप दैट इन माइंड. टू साइन सो देयर इज सम लोचा, -2x + y/2 into sin of x - y/2. Some people will also write it as sin of x + y/2 into sin of, इंस्टेड ऑफ x - y वो उसको y - x/2 लिखता है, यानी कि माइनस साइन को अंदर ले लेता है. दोनों ही फॉर्मूलेज बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते बच्चों यही लॉजिक के साथ. कैन यू सी साइन एंड साइन? तो साइन है तो आप साइन के फॉर्मूला को रेफर करिए. बीच में प्लस साइन है तो पहला टर्म क्या है बच्चा? साइन और कॉस, इसीलिए आपने लिख दिया साइन एंड कॉस. समझ रहे हो? वेरी गुड. अगेन साइन एंड साइन, आई विल गो टू द साइन हीरो फॉर्मूले. There is a minus sign in between, so I will refer to the second term which says cos and sin. तो देखिए पहला टर्म cos, दूसरा टर्म sin आ गया. बस यही लॉजिक से मैंने इस चीज को याद रखा है, इसी लॉजिक से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी और इसी लॉजिक से अगर आप याद रखेंगे तो फॉर्मूले कंफ्यूज नहीं होगा, वरना तो यार कहाँ पे साइन कहाँ पे cos, सारा मामला गड़बड़ हो सकता है ना. तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर टू साइन माइनस साइन शुड कम आउट या फिर इसको उल्टा लिखना. ये चार फंडे क्लियर हैं बच्चों. चलिए थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. प्रूव दैट sin square 6x minus sin square 4x is sin 2x into sin 10x. बच्चों हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो सम टू प्रोडक्ट है ना, यानी कि लेफ्ट साइड में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन है. कैन यू सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू थिंग्स, प्रोडक्ट. यहाँ पे भी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली आई गेट एन आइडिया कि भाई सम टू प्रोडक्ट यूज करना है. ऐसे आपको आइडिया मिलेगा, है ना. साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये है अपना LHS. सिंस हमें प्रूव करना है हम LHS को लिख रहे हैं. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जब यूज करोगे तो यू विल गेट साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x. So far so good, clear है. Okay, let's move ahead. यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है साइन C माइनस साइन D, यानी कि साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट ब्रैकेट में, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा दो सेकेंड ब्रैकेट में. अच्छा अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं है ऐसा अज्यूम करता है ना, हालांकि याद है बट अज्यूम करता है. साइन तो यानी कि साइन के हीरे फॉर्मूला में जाना है. माइनस साइन है तो जो साइन का हीरो फॉर्मूला था उसके दूसरा टर्म क्या हुआ करता था यार? कॉस एंड साइन होता था. तो कॉस 6x प्लस 4x/2 इंटू साइन 6x माइनस 4x/2. इस तरीके से मैंने पहले वाले टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. सेकेंड वाले टर्म का यार साइन के फॉर्मूला में बीच में प्लस है, यानी पहला टर्म क्या था साइन के फॉर्मूला में? याद करो, 2 साइन एंड कॉस था, है ना, साइन कॉस था. 6x प्लस 4x/2 इंटू 6x माइनस 4x/2 ब्रैकेट कंप्लीट. लेट अस सी जो रिक्वायर्ड है वो आता है या नहीं. अच्छा ये 2 इंटू 2 तो 4 बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ? 6x प्लस 4x 10x/2 यानी कि 5x हो गया. 6 माइनस 4 2x/2 इज साइन x मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 हमने ले लिया है. साइन 6 प्लस 4/2 अगेन वी गेट साइन 5x, है ना. हाँ कि ना, बताते जाइए यार चैट में, बस थम्स अप देते जाइए. मैं तो देख ही रही हूँ इसको, मैं तो देखने ही वाली हूँ. बिल्कुल आप क्या कमेंट कर रहे हो, क्या लाइक कर रहे हो, क्या चैट कर रहे हो, गपशप कर रहे हो या ध्यान दे रहे हो पढ़ाई पे? चल
and then cos of 6 minus 4 2x by 2 which is again x. Is it proved? Done? No 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 no. करते हैं देखिए यहाँ पे sin 2x है 10x है, वाह हमारे पास x है, हमारे पास 5x है, डबल करना है बॉस। तो पिछले लेक्चर का डबल एंगल फॉर्मूला बहुत बढ़िया से काम आ जाएगा, यानी कि 2 sin x cos x को एक साथ में लिख दो एंड 2 cos sin 5x इंटू cos 5x को एक साथ में ले लो। बस मैंने अलग अलग ग्रुपिंग कर दिया है। दिस इज sin 2x, दिस इज sin 10x and this is nothing but your RHS right hand side, hence proved। easy बच्चा लोग, अगर पक्का समझ में आया मेरे को बताओ 100%। if you have understood this then you will try the next question that I am giving you. You will try the next question, it's exactly similar। cos square 2x minus cos square 6x को प्रूव करना है ये। अब ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया ताकि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिस्ट से ना उठाना, लिस्ट से मत उठाओ, रिकॉल करो यार, वो लॉजिक से रिकॉल करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी cos 6x a प्लस बी cos 2x प्लस cos 6x। चलो लेट्स ट्राई टू रिकॉल यार। cos और cos के फॉर्मूला में जाना है, माइनस साइन है तो सेकेंड टर्म क्या था cos के हीरो फॉर्मूला में, साइन था। सो इट्स गोइंग टू बी साइन 2 टाइम्स साइन 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू साइन। यार दो साइन आता है तो कुछ लोचा होता है, सो आई इंस्टेड ऑफ पुटिंग 2x माइनस 6x आई एम गोइंग टू यूज 6x माइनस 2x। उल्टा पक्का याद आया, सभी लोगों को याद आ गया। 2 साइन मतलब x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स। सेकेंड ब्रैकेट ओपनिंग गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग। ऐसे ही आप याद कर करके सॉल्व करोगे ना, बहुत इजी पड़ेगा। cos प्लस साइन है यानी कि फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2 into cos 2x minus 6x by 2 bracket close. This gives me again 2 times sin 6 plus 2 8x by 2 4x into sin 4x 6 minus 2 4 by 2 is 2x into 2 cos 4x into cos 2x minus 6x is minus 4x by 2 यानी कि माइनस 2x। बट बच्चा लोग हम लोगों ने देखा है cos of minus theta is same as cos theta, isn't it? cos of minus theta is same as cos of theta। तो बस मैंने इसको रीअरेंज करना है। अब 2 sin 4x इंटू cos 4x को एक साथ ले लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मैंने ले लिया 2 sin 2x इंटू cos माइनस 2x की जगह प्लस 2x। This gives me sin 8x into sin 4x, hence proved। कितने मेरे को पता है आप लोगों को मेरे से पहले आ गया है ना, बट प्रैक्टिस हुई या नहीं, फॉर्मूले की प्रैक्टिस हुई या नहीं, पक्का बताना। हो गया ये तो हो गई है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is 4 cos square x into sin 4x। Again it's sum to product, देखते हैं। LHS मैंने इसको अलग थोड़ी सी रीअरेंज करके लिख रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। sin 2x plus sin 6x एक साथ में लिख दिया, और ये जो भाई अलग सा अजीब सा दिखने वाला टर्म है इसको लास्ट में रख दिया। देखते हैं उसका क्या करेंगे, देखते हैं। लेट्स कीप इट असाइड। इसमें फॉर्मूला लगा दे, किस बात की दे दिया है, साइन और साइन का फॉर्मूला हीरो फॉर्मूला प्लस है तो पहला टर्म 2 sin 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x बाई 2। यार कॉस में ना यही फायदा है, मतलब नेगेटिव आ जाए तो बहुत मजा है, क्योंकि वो पॉजिटिव ही होने वाला है। नो फिकर नो वरी। It's 2 sin, बचा लोग 6 plus 2 8x by 2 is 4x into cos 2 minus 6 minus 4 by 2 is minus 2x plus 2 sin 4x। यार मिल गया क्या जो चाहिए? नहीं,
बट हाँ मैं ये दोनों में से 2 sin 4x को कॉमन निकाल लेते हैं. 2 sin 4x is common. In the bracket I am left with cos 2x. सेम फंडा, माइनस 2x को मैंने प्लस 2x लिखा प्लस 1. ओके मैम, लास्ट लेक्चर में हमने 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या बताया? किस किस बच्चे को याद है 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हुआ करता था 2 cos square x. याद करो 1 प्लस cos थीटा was 2 cos square थीटा by 2. उसका हाफ हो जाना है, यहाँ पे 2x है तो उसका हाफ x हो जाना है. We are done. 4 cos square x into sin 4x. Isn't that easy, guys? Isn't that RHS? Haven't you proved it? Good. यार ये ना थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ cos x. ठीक है, cool, perfect. Moving on to the next set of 4 formulas in front of you. प्रोडक्ट टू सम, बिल्कुल उल्टा जो अभी किया है उसी का थोड़ा सा उल्टा फॉर्मेट है. प्रोडक्ट टू सम, लेफ्ट साइड में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, राइट साइड में आपके पास प्लस एंड माइनस साइन है. इसको कैसे याद रखें? लेट मी रीड इट वंस. 2 cos x cos y is cos x plus y plus cos x minus y. sin x sin y is cos x plus y minus cos x minus y. sin x cos y is sin x plus y sin x minus y, बीच में प्लस. cos x sin y is sin x plus y minus sin x minus y. ओके, तो इसको याद रखने के लिए भी मैम ने सेम ही तरीका बोला है. आपको कुछ नया फंडा नहीं याद रखना है, बस एक चीज याद रखो, प्लस है तो फर्स्ट टर्म एंड माइनस है तो सेकेंड टर्म. भाई किसका फर्स्ट और सेकेंड टर्म? भाई हीरो फॉर्मूले का, और किसका? आपके सामने में अभी लिख देते हैं. आई एम श्योर ये दोनों फॉर्मूले तो मतलब सबको एकदम नींद में भी उठा के मैं पूछ लूं तो बोल ही दोगे आप. क्यों? cos x cos y माइनस sin x sin y. अब हम लोग सम टू प्रोडक्ट कर रहे थे बच्चों, तो हमने देखा था कि भाई प्लस लेना है माइनस लेना है. प्रोडक्ट टू सम में आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में क्या है भाई, यहाँ पे है cos cos. यार ये cos cos किसके फॉर्मूले में आ रहा है? cos के फॉर्मूले में आ रहा है ना. cos एंड cos cos के फॉर्मूले में आ रहा है, इसलिए आप दोनों टर्म cos लिख दीजिए आंखें बंद करके. फिर ये cos और cos है कितना? पहला, इट इज द फर्स्ट टर्म, इजंट इट? दिस इज द फर्स्ट टर्म, सो दैट्स व्हाई प्लस साइन. लेट्स डू इट अगेन. साइन और साइन ये किसके एक्सपेंशन में आता है? cos के एक्सपेंशन में आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे cos लिख दिया. भाई ये कितना टर्म है? माइनस, सेकेंड टर्म है तो बीच में आ जाएगा माइनस साइन. अगेन प्लीज नोटिस, 2 साइन होते हैं तो लोचा होता है, यानी कि यहाँ पे ये माइनस है. ठीक है, ओके. कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, cos ऑफ x माइनस वाई प्लस cos ऑफ x प्लस वाई नॉट. हाँ, ये 2 sin x इंटू साइन y को कुछ लोग, आई विल करेक्ट इट, जस्ट 1 सेकेंड. आप ये माइनस साइन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच में माइनस ही रहेगा. जस्ट दैट x माइनस वाई वाला टर्म पहले, x प्लस वाई वाला टर्म बाद में. ये बस माइनस साइन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट साइड में प्लस अगर आपको रखना है, यू डोंट वांट माइनस इन द लेफ्ट, तो राइट साइड में उल्टा कर दो टर्म्स. यार 2 साइन है तो कुछ लोचा है, यानी कि cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई. इसमें थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, 2 साइन लोचा. नेक्स्ट, साइन इंटू कॉस. बच्चा लोग साइन इंटू कॉस किसके एक्सपेंशन में आता है? साइन के एक्सपेंशन में, तो लिख दो साइन एंड साइन. बॉस, इट इज द फर्स्ट टर्म, इजंट इट? इट इज द फर्स्ट टर्म, दैट्स व्हाई अ प्लस साइन. Cos into sin, it is in the expansion of sin itself, so I am going to write sin and sin. It is the second term in the expansion. Cos and sin is the second term. Second term means minus sign. So that's how I will remember all 4 of these formulas. Please note it down. We are going to take up few questions on this right now, just so that आपका फॉर्मूला बाहर हो जाए. देखते बच्चों. अच्छा, एक ये जो है ना लास्ट वाला जो दोनों फॉर्मूले है ना, ये दोनों, इसमें एक पंगा हो सकता है ना. ये sin x cos y cos x sin y, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, मतलब sin को पहले लिख दो cos को बाद में. फर्क कैसा है ये बताती हूँ मैं अभी. 2 sin 30 cos 50, मान लीजिए ऐसा कुछ है, एंड देन कुछ ऐसा नंबर है cos 50
साइन 30। मेरे को बताना ये दोनों सेम है कि अलग है। मतलब फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा है, फर्स्ट वाला, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, थर्ड वाला या फोर्थ वाला फॉर्मूला? बस इतनी सी बात बता। जो मैंने जो ये लिखा है पहला वाला, इसमें आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे कि सेकंड फॉर्मूला, आई मीन थर्ड फॉर्मूला यूज करोगे कि फोर्थ फॉर्मूला? तो बच्चे फट से बोलेंगे कि मैम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे हम। बच्चे फट से क्या बोलेंगे, मैम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं नहीं मेरे बच्चे, थर्ड फॉर्मूला नहीं यूज करोगे। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फोर्थ वाला। वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है मेरे बच्चे, क्योंकि जब भी हम एंगल लिखते हैं ना, तो आप सिर्फ देख रहे हो साइन पहले है कॉस बाद में, ये मैटर नहीं करता है। जब हम x और y कहते हैं, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन y। x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 50 डिग्री ग्रेटर, 30 डिग्री स्मॉलर। 50 बड़ा है, 50 बड़ा है, यानी कि वो एक्चुअल में इस तरीके से है, cos 50 sin 30। जो भी बड़ा है वो पहले आएगा, जो छोटा है वो बाद में। तो वी आर गोइंग टू यूज फोर्थ फॉर्मूले गाइस, ठीक है। अगर ये ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज 2 sin 50 cos 30, बोलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप sin 50 cos 30 के लिए? थर्ड फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट। चलिए अगर ये ऐसा होता 2 cos 30 sin 50, 2 cos 30 sin 50 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अगेन यू विल बी यूजिंग थर्ड फॉर्मूला ओनली माय डियर चाइल्ड, क्योंकि भाई बड़ा एंगल क्या है, 50, और बड़ा एंगल पहले होना चाहिए। तो साइन पहले कॉस बाद में, तो थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। यहीं पे खाली आपको केयरफुल रहना है। मैं नीचे इसलिए झुक रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट अभी देख लो। हम हमेशा एंगल पे डिसाइड करेंगे whether sin is before or cos is before, otherwise students may go wrong over here. We will take a question that will confuse you and we will solve the confusion, क्योंकि वही तो मेरा काम है यार, आपका कंफ्यूजन सॉल्व करना। लेट्स टेक अप द क्वेश्चन गाइस। कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस में जाना है। बढ़िया से फॉर्मूला दे रखा है 2 sin 5x इंटू cos 3x। याद करो साइन एंड कॉस। अच्छा ये 5x बड़ा है, 3x छोटा है, सो दिस इज प्रॉपर ऑर्डर में। साइन एंड कॉस आता था साइन के एक्सपेंशन में, right? Sin and cos was in the expansion of sin, so I'm going to write sin. I'm going to write sin. Whether it was the first term or the second term, it was the first term, है ना? Sin of x plus y sin x cos y, तो पहला टर्म है ये हीरो फॉर्मूला का, तो प्लस साइन। अब बस बीच में आपको पता ही करना क्या है, ये देख लो एक बारी, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। So 5x plus 3x plus sin of 5x minus 3x, which is equal to sin of 8x plus sin of 2x, and your answer is over my dear child. फंडा क्लियर है? ओके चलो लेट्स सॉल्व वन मोर। sin 3 pi by 2 into cos 5 pi by 2, 5 pi by 2 as sum or difference। ऐसा कैसा है, 5 pi by 2, 5 pi by 2, फाई बोलते हैं उसको, फाई को फाई बोलते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर पाए, है ना। चलिए इसको हमने एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो यार फॉर्मूला में 2 होता था, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। 2 नहीं है तो 2 को इंक्लूड कर लो। 3 5 by 2 इंटू कॉस ऑफ 5 5 by 2। ओके ऑलराइट, हाफ को बाहर ही रहने दीजिए, इसके अंदर आप फॉर्मूला लगाने की कोशिश करिए। अब कितने बच्चे बताओ मेरे को, थर्ड फॉर्मूला यूज करोगे कि फोर्थ फॉर्मूला यूज करोगे, बता दो जल्दी से। इसको मैं ऐसे लिखने वाली हूं, मैं कॉस को पहले लिखूंगी क्योंकि वो बड़ा एंगल है, साइन को बाद में लिखूंगी क्योंकि वो छोटा एंगल है। और अब बच्चों ने आंसर को पलट के कहा कि मैम हम यूज करेंगे फोर्थ फॉर्मूला क्योंकि कॉस पहले है, साइन बाद में। डेफिनेटली लेट्स यूज द फोर्थ फॉर्मूला। इट सेज कॉस एंड साइन आता है कॉस के साइन के एक्सपेंशन में, एंड इट इज द सेकेंड टर्म। तो साइन के एक्सपेंशन में ये दूसरा टर्म है, तो बीच में भाई माइनस साइन आ जाएगा। So it's 5 pi by 2 plus 3 pi by 2, 5 pi by 2 minus 3 pi by 2. It's half into 5 plus 3 8 by 2 यानी कि 4 5 minus 5 minus 3 2 by 2 यानी कि sin 5,
and that's your answer, guys. This is the answer, expressing this product as sum and difference. Sin 4 phi minus sin phi by 2 is the answer. Have you got it? पक्का पक्का एकदम पक्का, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी के बीच में. चलिए, in quadrilateral ABCD, this is what is given. Sin A plus B by 2 cos A minus B by 2 plus sin C plus D by 2 cos C minus D by 2 equal to 2. ठीक है. Find the value of sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2 into sin D by 2. यार सम टू प्रोडक्ट वाला कुछ सिलसिला दिख रहा है. Let us simplify this. जो भी गिवन है ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है. यहाँ पे आपको दिख रहा है sin A plus B by 2 into cos A minus B by 2, यानी कि प्रोडक्ट तो है बट 2 मिसिंग है. तो क्या मैं लेफ्ट साइड में पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना. जो भी गिवन है 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ लेफ्ट में. अच्छा, ये तो पहले ब्रैकेट में मैंने 2 डाल दिया, दूसरे ब्रैकेट में भी 2 की जरूरत है तो मैं तो 2 थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. प्लस साइन C प्लस D बाई 2. देखना बच्चों ये कितने अच्छे से सिंप्लीफाई होने वाला है अभी जल्दी से. ये हुआ सेकेंड ब्रैकेट एंड इक्वल टू लेफ्ट में 2 मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्लीज देख लो 4 है. इज इक्वल टू, अब ये 2 हर एक ब्रैकेट के साथ चला जाएगा. सो इट्स 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2 प्लस 2 टाइम्स sin of C plus D by 2 into cos of C minus D by 2 equal to 4. ये 2 इसीलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम फॉर्मूला लगा सके. यार ये साइन एंड कॉस है, साइन कॉस आता है साइन के एक्सपेंशन में, आता है कि नहीं आता है? आता है भाई. ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म. सो इट्स गोइंग टू बी साइन, एक्चुअली ये साइन A प्लस साइन B. ठीक है, तो ये अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे साइन का एक्सपेंशन वाला तो यू विल गेट साइन ऑफ A प्लस B प्लस A माइनस B बाई 2 प्लस साइन ऑफ, प्लस क्यों लिखा यार, फर्स्ट टर्म है इसलिए, A प्लस B बाई 2, आई मीन माइनस कर लेते एक ही साथ में, माइनस A माइनस ऑफ माइनस प्लस. ठीक है, यहाँ पे अगेन इट्स साइन एंड कॉस तो सेम फंडा आने वाला है. इट्स साइन ऑफ C प्लस D प्लस C माइनस D बाई 2 इंटू, आई मीन इंटू नहीं प्लस, डेफिनेटली इट्स अ प्लस. लेट्स डू दिस. प्लस साइन ऑफ C प्लस D माइनस C प्लस D बाई 2. When you solve this, can you say it? When you solve this, ये B और B यहाँ पे कट है, यहाँ पे A कट है, यहाँ पे D एंड यहाँ पे C एंड C कट है. बच्चों माइनस साइन को इट्स बीन टेकन केयर ऑफ. So we get sin A plus sin B plus sin C plus sin D equal to 4. RHS was 4, right? अब addition of 4 sin is giving you answer 4. तो डेफिनेटली ये क्या इंप्लाई करता है, हम लोग को पता है यार साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1. तो मैक्सिमम इज 1 और हमको एडिशन ऑफ 4 एंगल्स 4 आ रहा है. तो बाय डिफॉल्ट ये इंप्लाई करता है कि अपना एंगल साइन A, साइन B एंड साइन C एंड साइन D चारों के चारों क्या होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं. सभी के सभी इंडिविजुअली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तभी 4 मिलेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके, सभी लोग अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हैं. अगर साइन ऑफ थीटा इज 1 मतलब ये एंगल A कितना होता है, साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1, इट्स 90 डिग्री, इजंट इट? तो यानी कि A B C D चारों के चारों 90 डिग्री है, राइट? तो A बाई 2 B बाई 2 C बाई 2 क्या होगा यार, A बाई 2 B बाई 2 C बाई 2 एंड D बाई 2 चारों के चारों क्या होंगे, 45 डिग्री होंगे, राइट? बिल्कुल सही. लेट मी जस्ट चेक. ओके, थिंग्स आर फाइन.
चारों के चारों 45 डिग्री है। हमको क्या मांगता है, साइन ए इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इंटू साइन डी बाई टू। लेट्स टेक द वैल्यू, इट्स साइन 45 इंटू साइन 45 इंटू साइन 45 इंटू साइन 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू इंटू 4 टाइम्स। आंसर क्या आएगा, 1 बाई 4, 1 बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू इंटू आई मीन 4, या जिसको नहीं समझता 4 बारी लिख लो, 1 बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू। सॉल्व इट, वी गेट 1 बाई 4। सो आंसर क्या मिला बच्चों, फाइनली इस पूरे के पूरे सम का आंसर है 1 बाई 4। लेट मी क्विकली रिवाइज फॉर यू। देखिए जो गिवन पार्ट था उसको हमने एनालाइज किया, हमने बोला यार लेफ्ट में तो प्रोडक्ट दिख रहा है दो चीजों का, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो आई मल्टीप्लाइड द होल इक्वेशन विद 2 ऑन बोथ साइड्स। RHS बिकम्स 4, LHS में 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो दोनों ही टर्म के साथ एक एक करके चला गया, पहले टर्म के साथ भी दूसरे टर्म के साथ भी। जब आपने पहले टर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, सो इट्स साइन एंड कॉस, राइट। तो साइन का फॉर्मूला साइन साइन प्लस साइन बिकॉज फर्स्ट टर्म, अगेन साइन कॉस, यार साइन का फॉर्मूला प्लस साइन बिकॉज फर्स्ट टर्म। थिंग्स आर गेटिंग कैंसिल्ड, 2a by 2 is a, 2b by 2, 2c by 2, 2d by 2। We get sin a plus sin b plus sin d, c plus sin d 4। तो इसका मतलब इंडिविजुअली ऑल आर 1, यानी कि ए बी सी डी 90 डिग्री है, यानी कि उनका हाफ है 45 डिग्री। बस उसकी वैल्यू रख दी, आंसर मिल गई 1 बाई 4। आर यू गेटिंग दिस गाइज? ओके, अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस आई वांट यू टू ट्राई। फॉर एग्जांपल ये वाली क्वेश्चन देख लो, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। बस बच्चे हमारे तैयार है। cot 4x LHS ले रहे हैं बच्चों, sin 5x प्लस sin 3x। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल। cot 4x को लिखते हैं cos 4x अपॉन sin 4x। यहाँ पे साइन ऑफ c प्लस साइन d का फॉर्मूला, अगेन ट्राई टू रिकॉल, साइन 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 के हीरो फॉर्मूला में प्लस साइन यानी कि फर्स्ट टर्म, इट्स गोइंग टू बी 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c minus d by 2। Are we clear on this? It's cos 4x upon sin 4x, bracket में 2 times sin 5 plus 3 by 2 4x cos 5 minus 3 by 2 cos 6। Tan tan tan, we get 2 times cos x into cos 4x। Is this your RHS? No bro, ये मिला LHS। चलिए RHS को भी यहाँ पे लेकर आता है, लेकर आना ही पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा। It's cot x sin 5x minus sin 3x। Solve it। सेम तरीका, cos x अपॉन sin x, बच्चा sin 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 का फॉर्मूला माइनस साइन है तो सेकेंड टर्म इन द हीरो फॉर्मूला विच वॉज 2 टाइम्स cos 5x प्लस 3x बाई 2। किस किस को ये समझ में आ गया मेरे से पहले? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। cos x अपॉन sin x, we are almost there guys। 2 cos 5 plus 3 by 2 4x into sin 5 minus 3 by 2 sin x। Tan tan tan, we get 2 times cos x into cos 4x। Have we proved what is required? Done, done, done or not? हमने LHS को सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया, we get them to be equal, hence proved। Sum to product का formula, these were some extra questions that we could solve easily। अब ये एक क्वेश्चन मैं और कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है? इसके जैसा सिमिलर है, हमने बस क्या कर रहे हैं, अब प्रूव कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो मेरी तरफ से अच्छे से सोच सोच के प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई होप तुम भी ऐसे ही सोच रहे हो। लेट्स डू दिस। न्यूमरेटर इज कॉस कॉस, तो कॉस की फॉर्मूला, माइनस है तो भाई साइन आएगा, है ना? सेकेंड टर्म, माइनस है तो सेकेंड टर्म, so it's going to be 2 sin c plus d by 2 into sin, यार d minus c by 2, उल्टा करना है भाई, साइन साइन है तो लोचा है, अपॉन साइन एंड साइन, तो साइन का फॉर्मूला हीरो फॉर्मूला माइनस साइन यानी कि सेकेंड टर्म विच इज 2 cos 17 plus 3x by 2 into sin 17x minus 3x by 2। We are almost done।
प्रोडक्ट है, 2 2 निकाल दीजिए। 9x प्लस 5x क्या होगा? 14x by 2 which is 7x. 5 minus 9 minus 4x by 2 minus 2x. The whole divided by 17 plus 3 20x by 2 which is cos 10x into 17 minus 3 14 by 2 which is 7x. Sin of minus 2x होता है minus sin 2x upon cos 10x which is your RHS. हो रही है या नहीं प्रैक्टिस? यार पक्का बताओ, सच सच बताओ, एकदम से थम्स अप दे दो अगर समझ में आ रहा है कि हम क्या लॉजिक से मैम ऐसे फट फॉर्मूले कैसे निकाल रही है अंदर से। No, I have used the same logic that I've shared with you. Please follow that. Please ऐसे सोच के लिखो। Initially you will take time, बाद में हो जाएगा मस्कार। Okay, can you solve this question for me please try it out. अभी के अभी पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए। देखिए बिल्कुल सेम है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐड किया है। साइन न्यूमरेटर में, कॉस डिनोमिनेटर में। फॉर्मूला याद करिए, अप्लाई करिए और प्रूव करिए। ठीक है बच्चा? दिस ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, साइन न्यूमरेटर में, कॉस डिनोमिनेटर में। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आई एम जस्ट शोइंग यू कि भाई देखो फंडा वही है, बस रिपीटेड फॉर्मेट में उसको डाल दिया है। ठीक है? सो ऑल द गाइज हु आर वेटिंग फॉर प्रो सब्सक्रिप्शन, प्लीज गो टू द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। यू विल नो कि भाई क्या क्या वेदांतु आपके लिए कर रहा है, आपके लिए। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेटिंग एट अ ग्रेट डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट if you use the coupon code VTIPRO Pro. Again this is a homework question जिसमें फिर से आपको देखना, सम दिख रहा है, फॉर्मूला लगाना, आप खुद समझ जाओगे। जस्ट गो विद द फ्लो, पहले इसको सॉल्व करिए, फिर cos 2x को देखना कैसे आप उसको ऐड करके cot 3x निकालते हो। Use the formula very well, practice very well. These are the set of formulas that we studied today, all 8 formulas. I hope we are clear, we are not getting confused guys, right? So see you all in the next class बच्चा लोग। Wednesday, Monday, Wednesday, Friday 4 PM Wednesday होगा mentees. Be ready with the last concept, the last topic is left and then we'll say bye to this topic. 11th जनता को पता चल गया, आप 12th जनता को जाके बता दीजिए कि Tuesday, Thursday, Saturday भी मैम आपके लिए क्लास लेगी 4 PM same time. See you all in the next class बच्चा लोग। Join the Telegram group, like before you leave, like, share, subscribe, and thank you for your support. Thank you for watching the video. I hope you learn. See you all soon. Bye bye. Miss you. Take care.